नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस सेशन में। आज हमारे बीच दो ऐसे विद्वान बैठे हैं जो भारतीय संस्कृति को विदेश में और विदेशी भाषाओं में फैला रहे हैं, उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ उन देशों के युवाओं को संस्कृति से जोड़ रहे हैं। I welcome all of you to this wonderful session where we are going to talk with two intellectuals, spiritualists, who are going to discuss their journey with the concept and the craft of translation, especially when it comes to the translation of the scriptures. They have been doing this whale of a craftsmanship rich job, self-disciplined job of making sure that our scriptures are reaching the youth of the world. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Mridul Kirti ji and Shri Oscar Pujol. Oscar Pujol is when I met him for the first time few days ago, I told him, it seems like you are a Indian soul lost in the mire of the world and has come back to India, to us, our very own. He has been studying scriptures and has a wonderful childhood journey towards India from Spain, has spent 16 years at the Banaras Hindu University and heads the Cervantes Center, New Delhi. Oscar, I'd like to start by asking about the uniqueness of your journey with the Indian scriptures, and how you went about translating Srimad Bhagavad Gita, Sankara's thought, and of course one of the Upanishads into Spanish, and what has been the reception like? Thank you very much for this wonderful introduction. सबसे पहले तो आप सबको तो हमारा हार्दिक नमस्कार। हम तो हमारा प्रेजेंटेशन तो अंग्रेजी में ही करेंगे, लेकिन कम से कम 3-4 शब्द तो हिंदी में बोलना ही पड़ेगा ना। So I would like to say first of all, that my trip to India was a matter of chance, actually, because I never wanted to come to India, to be truthful to you. But it was my wife who led me here and made me discover this wonderful continent, because it's not a subcontinent, it's a continent in its own right, And in my first trip to India, the Bhagavad Gita spoke to me. And the Bhagavad Gita for me was the source of inspiration for learning Sanskrit. Actually, I remember very well, I was sitting in Pushkar, and I was reading an English translation of the Bhagavad Gita. At that time, I didn't know any Sanskrit nor any Hindi. But it was one shlok who really changed the way I perceive myself. And I think that's the wonderful thing about classical books, about wisdom books, This was a shlok from the 3rd chapter. And I will just pronounce it, Evam pravartitam chakram Nanu vartayati hayaha agayurindriya ramo mogham partasa jivati. And this shlok says very easy, Evam pravartitam chakram. Evam pravartitam chakram. The chakra, the wheel that turns like this. Evam pravartitam chakram. Nanusarati ihaya. The person who is not following the wheel of life that turns like this, aghayur indriya ramo. He lives a life dedicated to the sensual pleasure. And he really ends up wasting his life, okay? If you don't turn with the wheel of life, the Vedic text and the Gita, which is also a Vedic text, are full of these wheels of life where human action is at the center of this turning of the wheel to make a world that it is really,
sustainable. And they say like that already. So after this, the Gita says, if you don't follow your own dharma, even if you are able to perform the dharma of another person in an excellent way, you are doomed. So this is a very subtle thing. Even if you do the dharma of another person and you do it well, you will be lost. So after reading this, I recognized it was a time of my life, you know, when I was denying my own Swadharma. I was a man of letters, and I was trying to be a man of action, okay? And then after reading that, I came back, and I retook my studies, and I made, you know, the decisions to come back to India and to study Sanskrit to be able to read the Gita in the original language. And that's basically my story. That's a beautiful journey. We have Vidushi Mridul Kirti ji here with us, from India to the US to Australia. Something that didn't change all this while was her spiritual core and pursuit in the scriptures of our country. From translating to Vivek Chudamani, to Patanjali Yog Sutra, Sankhya Yog Darshan, Ashtavakra Gita. Ma'am, I'd request you to please, for the benefit of our audience, if we could show your... And this is what the authors produce is like. And आपकी ये यात्रा मृदुल जी कहाँ से शुरू हुई, और इतने सालों बाद देश के बाहर रहने के बावजूद भी आप लगातार देश की जड़ों के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे यूथ के साथ जुड़ी हुई हैं, शास्त्रों के साथ जुड़ी हुई हैं, योग के साथ जुड़ी हुई हैं. हमें कुछ बताएं. सभी को मेरा नमन, वंदन और स्तवन, और सभी शुद्ध बुद्ध और प्रबुद्ध आत्माओं को नमन करती हूँ. आत्माओं शब्द मैंने केवल इसलिए कहा कि हमारा जो भी यहाँ वार्ता हो रही है वो अध्यात्म की है, और अध्यात्म का अर्थ है हम देह से परे देहीन में जाते हैं. तो देहीन में प्रवेश करते हुए, इसलिए इसका मेरा संबोधन सटीक है कि सभी आत्माओं को नमन करती हूँ. अभी आप अदिति जी ने जो प्रवास की बात की, उसके संदर्भ में दो पंक्ति कहूँगी कि सरहदें देह की हैं और बिना देह का मन की देह नहीं होती. सरहदें देह की हैं और बिना देह का मन जिसे चाहता है वहीं पर रहेगा, कि तन एक पिंजरा जहाँ चाहे रख लो, कि मन का पखेरु तो उड़कर रहेगा. तो मुझे प्रवासी ना कहना, मैं राजदूत हूँ. मैं जब साड़ी पहनती हूँ तो भारतीयता की याद दिला देती हूँ. जब मैं मंत्रों की बात करती हूँ विदेश में तो मैं गुरुकुल की याद दिला देती हूँ. मुझे प्रवासी ना कहना, मैं राजदूत हूँ. ये तो आपका आंसर हुआ जी. और विदेशों में ही रह के मैंने पातंजलि योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि और सांख्य योग दर्शन, पहली नारी ऐसी है जिसने सांख्य योग दर्शन को छूने की एक साहस किया है. इसीलिए आपको विदुषी से हम संबोधित कर रहे हैं. तो इसको अवधि में किया है. मैं अपने कृतित्व का संक्षेप में परिचय देती हूँ कि पहले सामवेद का काव्यानुवाद किया. ये सब जो मैं बोलूँगी ग्रंथों के नाम, ये ऋषिय जो ग्रंथ हैं, ऋषि जो स्वयं ऋषियों के लिखे हुए हैं, उन मूल संस्कृत से हिंदी काव्य में अनुवादित किया है. और वो कभी दोहे में है तो कभी छंद में है, कभी रामायण की तरह है तो कभी अवधि में है, तो कभी ब्रज भाषा में है तो कभी खड़ी बोली में है, कभी छंद है, कभी दोहा है, कभी गीतिका है, कभी हरि गीतिका है. इस तरह इस सब शब्दों का समापन किया, आगे किया. सुनिए ग्रंथ जिनके काम हुए हैं ईश्वर की कृपा से. सामवेद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, ऐत्रेय, तैत्रीय, श्वेताक्षर, 9 उपनिषद. भगवद गीता ब्रज भाषा में, भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, पातंजलि योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि, प्राण सूक्त, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध आदि 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 बहुत सारे हैं. तो यहाँ पर ये तो नाम हो गए, लेकिन मैं एक प्रसाद कण भी आप लोगों को साथ के साथ देती चलूँ. मान लीजिए भगवद गीता की बात करती हूँ तो ब्रज भाषा में सुनिए इसको.
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये मेरे विचार से सभी भारतीयों को आता है, मेरे विचार से। लेकिन जो कुछ हैं जिनकी रुचि कम है या जिनका आत्मबोध उत्थान की तरफ है, रुचि है, तो उनके लिए ये अनुवाद उनके लिए सटीक है। तो सुनिए इसको ब्रिज भाषा में। और इसका जो सौंदर्य है वो व्याकरणीय दृष्टि से देखिएगा, अनुप्रास और छंदों की दृष्टि से देखिएगा। सुनिए। जब धर्म धरा पे नसावती हैं, जब धर्म धरा पे नसावती हैं, अधर्महु पाँव पसावती हैं, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आन बचावती हैं। इसमें आप देखिए जो सौंदर्य है, धा 8 बार आया है। अनुप्रास के लिए ये एक श्रेष्ठ रचना मानी जा सकती है। दूसरे, जब आप अक्षरों की वर्णमाला के उसमें जाते हैं संदर्भ में, तो धा कठोर माना जाता है, लेकिन ये लावण्य में परिवर्तित हो गया। चौथे अध्याय में आइए, लावण्य देखिए भाषा का और माधुर्य देखिए ब्रज भाषा का, जो क्लिष्टता को हटाकर कितना अनुपम बनाता है। चौथे अध्याय में अर्जुन कहते हैं, कभी आपको जो चौथे अध्याय पे आते सभी भारतीय जानते होंगे, तो पहले वो विषाद में है, दूसरे में ज्ञान योग बताते हैं, तीसरे में कर्म योग की महत्ता बताते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, वासुदेव कभी ज्ञान योग, कभी कर्म योग, कभी भक्ति योग, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। निश्चित रूप से एक बात कहिए, सुनिए इसे। कबहु कहत निष्काम, कबहु कहत निष्काम, कबहु तुम ज्ञान को श्रेय बताए रहे, फिर काहे बेचारे अर्जुन को तुम कर्मन घोर फंसाए रहे। तो इस तरह मैंने आपको गीता का बताया, चूँकि आपने भी गीता का संदर्भ दिया था, तो मैंने कहा उसी का निरंतरता को आगे ले जाते हैं। और जब योग दर्शन का काव्यात्मक अनुवाद ईश्वर की कृपा से पहला अनुवाद इन हाथों से ईश्वर ने कराया। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं माटी की किंकरी जो बूंद पड़े गल जात, और माटी की गुणधर्मिता मेरी कौन बिसात। तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, पातंजलि योग दर्शन का वो सुख मैं आपको जरूर, योग दर्शन का विस्तार बहुत भी है। और पातंजलि योग दर्शन से पहले आपको सांख्य योग दर्शन समझना होगा, क्योंकि सांख्य योग दर्शन पातंजलि योग दर्शन की पीठिका है। बिना उसके विस्तार को जाने पातंजलि योग दर्शन भी अधूरा होता है। तो इसीलिए मैंने सांख्य योग दर्शन का भी काव्यानुवाद किया और पातंजलि योग का किया। लेकिन पातंजलि समय बहुत कम है, बात बहुत महत्वपूर्ण है, सच में और बहुत बड़ी है, और लंबी उसको लिए हम जल्दी से आपको बताते हैं शीघ्रता से कि पातंजलि योग दर्शन का विस्तार तो बहुत वृहद है, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके जो 3 आरंभ के सूक्त हैं, 3 आरंभ के सूक्त जो हैं, वो आप देखिए, उनकी सार गर्भिता, उनकी गुण गर्भिता, उनकी मर्म गर्भिता देखिए। वो 3 सूक्त ही पूरे योग दर्शन को व्याख्यायित करते हैं, बाकी तो आगे भी सब विस्तार है। तो पहला देखिए, अथ योगानुशासनम, जीवन में अनुशासन की, जीवन में सबसे पहले अनुशासन। फिर दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अनुशासन में सब आ जाता है, देह का, जीवन शैली का, सब कुछ आ गया। दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। तीसरा है तद दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, चित्त का संयम और नियमन हो गया, तो लो अब अपना स्वरूप देख लो। ये 3 हैं। लेकिन अब जो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा का सब लोग यूं ही जैसे ऐसे कह देते हैं, लेकिन आपको हम अंदर ले जाते हैं, इसमें प्रवेश करिए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो पहले यहाँ योग लगाया है, मैं कहती हूँ इसके 4 टुकड़े करिए। चित्त वृत्ति निरोधा इज इक्वल टू योग, चित्त वृत्ति निरोधा इज इक्वल टू योग। अब इसका जब काव्यानुवाद करते हैं तो आप देखिए इसी क्रम से मैं जाती हूँ। मैम, इसके साथ हम और बातों को आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल और मैं ऑस्कर जी से पूछ के आपके पास वापस आ रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का स्पेनिश अनुवाद हमें पता चला कि बहुत सराहा जा रहा है। इट्स बीन अप्रिशिएटेड विद द स्पेनिश रीडिंग ऑडियंस। व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली that they are looking out for when it's becoming one of the very
good selling books in Spain, what is it exactly they are looking out for in this text and your translation? Well, I try to make a very easy translation and a very direct translation. You see, the Sanskrit of the Mahabharata and the Sanskrit of the Bhagavad Gita, it's a very easy Sanskrit. It's a Sanskrit that people can understand quite easily. I mean, people who know Sanskrit, of course. And I always realize that while reading translations, the translations in Spanish and sometimes in European language, they were very difficult to read sometimes. The language, sometimes it becomes constrained, it becomes a little bit artificial. So my main thing was to make this text in a clear Spanish as easy and as crystal clear as the Sanskrit of the Bhagavad Gita is. And that was my first preoccupation, you know. मैंने भी तो वो योगा सूत्र का अनुवाद किया है पहले, और उस किताब और यह भी मेरा भी ये आइडिया रहा, ये ऑब्सेशन रहा मेरे साथ कि मैं संस्कृत टेक्स्ट स्पेनिश बोलने वाले के पास नज़दीक पहुंचा दूं, और इसको ध्यान में रखते हुए मैंने संस्कृत मूल भी दिया और संस्कृत मूल के साथ भी एक ग्लॉस दिया है. इसका अर्थ है कि मैं This is the book. I just wanted to show the book to this is the Spanish translation of Srimad Bhagavad Gita, and I would now request Oscar ji to read out one shloka and how it sounds in the Spanish translation. Yes, we have time for one. Okay. Yes. Okay. So we'll recite as Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakaha nachainam kledayantyapo nashoshayati marutaha achedyo yamadahyoyam akledyo sosya evacha nitya sarvagata sthanu rachaloyam sanatanaha. And I read the Spanish. I think all of us here have so much to learn from this session. These 30 minutes are way too less. This is in Spanish, so I don't know how many people are going to understand it, all right? So what I just read I pronounce in Sanskrit in Spanish will be like this. I won't recite it, but I will say it. Las espadas no lo hieren, el fuego no lo quema, las aguas no lo mojan y el viento no lo agosta. Es invulnerable, incombustible, impermeable, inmarcesible, es eterno, ubicuo, permanente, inamovible y primordial. मृदुल जी, देश से बाहर किस प्रकार की चर्चाएं हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में चल रही हैं? क्या परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, क्या विचार हो रहा है? और इस बीच में आप जब अपने अनुवाद करती हैं वहाँ, तो क्या वहाँ की लाइब्रेरीज़ या वहाँ के रिसोर्सेज आपको किसी तरीके से मददगार लगते हैं, या आपको लगता है कि हमारी काफ़ी किताबें वहाँ कम पहुँची हुई हैं और इस वजह से वो रिसोर्सफुलनेस जो होनी चाहिए लाइब्रेरीज़ की, अभिलेखागारों की, वो कम है? देखिए, भौतिकता से तो ऊब चले हैं लोग, और आओ लौट चले का एक आह्वान जाग चुका है लोगों में. आओ लौट चलें अपने वेदों की ओर, अपनी संस्कृति की ओर, अपनी भाषा की ओर, अपनी सभ्यता की ओर, अपने संस्कारों की ओर. भाषा व्यक्तायाम वाची. जब हम कोई भाषा बोलते हैं तो आप उसे केवल बोलने वाली बात ना समझिए, माध्यम. उसके अंदर सभ्यता, संस्कृति और संस्कार तीनों ही समाहित होते हैं. तो जो भाषा का परिप्रेक्ष्य है, लोग आकृष्ट हो रहे हैं संस्कृत की तरफ भी और हमारी ऋषीय परंपरा की तरफ भी. और आप ये देखिए, उसका एक प्रमाण योग है. योग ने आज पूरे विश्व को आच्छादित कर लिया है, क्योंकि अगर आप देह धरे हुए हैं, अगर देह है तो आपका स्वास्थ्य से भी संबंध है. उस स्वास्थ्य के संबंध का पहले आकर्षण होता है कि हम स्वस्थ रहेंगे, प्राणायाम करते हैं, तो उस आकर्षण ने विश्व को खींचा
हमारे भारत की ओर। और वो उसमें प्रवेश करते करते उनका जो सोए हुए धीत, धृति और स्मृति, 3 बिंदु जो हैं वो हर जन्म लेने वाले मनुष्य के अंदर सोए हुए रहते हैं, धी, धृति और स्मृति। अब ये जब आप ये गहराई से योग दर्शन पढ़े तो सब आता है। तो वो धी, धृति और स्मृति के जो सुप्त बिंदु हैं वो अब जाके टक्कर लगती है स्वास्थ्य के बिंदु से कि अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो वो यम पर आते हैं पहले, लेकिन उनको पता नहीं यम क्या, वो अनायास आते हैं, उनको फ़ायदा होता है, उनको लाभ होता है, तो वो उसके अंदर और प्रवेश करने लगते हैं। एक तरह से हमने जैसे टॉफ़ी सी दे दी बच्चों को, तो वो चीज़ योग ने दी है। और इस तरह योग आप देखिए विश्व में पूरा आच्छादित हो गया है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनमें से कुछ चुटकी भर लोग हैं जो वास्तव में धारणा, ध्यान और समाधि में भी समाधिस्थ होने की प्रकृति भी रखते हैं, प्रवृत्ति भी रखते हैं, इच्छा भी करते हैं और प्रयास भी करते हैं और भारत की तरफ उन्मुख हो चले हैं। तो उसका तो, और जहाँ तक मेरे कामों का विदेश में वो है, वो मैंने आपको पहले परिचय दिया कि अगर मैं साड़ी भी पहनती हूँ तो मैं भारत की याद दिला देती हूँ। और वहाँ के जो विश्वविद्यालय जैसे एटलांटा के जो है एमरी वगैरह, वहाँ पर मेरे एज ए गेस्ट लेक्चर मुझे बुलाया जाता है और बहुत सारी एम्बेसीज़ में बुलाया जाता है। मैं काउंसलेट में भी जाती हूँ और वो सब यहाँ चल रहा है और हिंदी के प्रति बहुत जागरूकता जागी है। बहुत खूबसूरत। अब हम अपने श्रोताओं की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो, कोई टिप्पणियाँ हो तो हमें ज़रूर बताएं। हम 2 सवाल ज़रूर ले सकते हैं। This is for the gentleman in Spanish. Oscar Pujo. Oscar, sir. I don't know, Hindi में, English में, should I ask the question? आपकी पसंद ना, हिंदी में। तो आप अनुवाद तो आपने किया, अब अगर अनुवाद करते करते आपको कोई similarities मिली in the messaging between English and Spanish? Very good question. Or culture? Very good question. Similarity Between the thought process, the spiritual the thought thought or the process. messaging in the Gita between what you see in your Spanish history culture and vis-a-vis what you saw in the Gita. Any common themes? There is a common theme, I think, between the Gita and a Western tradition which is very important, and that is Stoicism. Very Time is stoic, over. extremely stoic. Stoicism, you know, it's also all for equanimity, and also it is different, no? But this is a line of thought, you know, when you can find many similarities between the kind of spirit that the Gita is putting forward, especially this kind of equanimity, no? Being the same in pleasure, in pain, in happiness, in sorrow. And this is a very, of course, Stoicism lacks perhaps the metaphysic of the Gita. That's only for the Gita. But you say the psychological advices and how to have, you know, a proper life, how not to be attached to the results of your action, and how, you know, you do not interpret reality, what happens, but you are interpreting what you think about reality. And that's a Stoic principle which you also find in the Gita. We have one question. Can we take it? It's time. We are just coming down the stage and we are all yours. Yes. Okay, one question we can take. Yes, please. Yes. Namaste. Thank you. This question is for both the speakers. So, what advice would you have for us as readers? So, some of us are readers. Hello? Yes. Is this better? Yes. Yeah. This question is for both speakers. What advice would you have for those of us who are both readers as well as spiritual aspirants? At what stage and in what manner should we use the book as a guide, and what should we use as a process to correctly interpret the words, whether it is a translation or how do we transcend the words? आपने देह से देहहीन की बात की, तो इसी विचारधारा से मैं ये प्रश्न आप पे
हाँ, इसका उत्तर जो है वो थोड़ा सा तुम्हें पीछे जाना पड़ेगा। जैसे देह और देह के बीच जैसे स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है, ये 3 तो बताए गए हैं। लेकिन जब आप गीता गहराई से पढ़ते हैं तो एक तथ्य और निकल कर आता है, एक वैचारिक शरीर होता है। वैचारिक, उसको शरीर समझाने के लिए वैचारिक शरीर कह दिया। इसके लिए आपको गीता में जाना पड़ेगा। जब कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, वासुदेव आप कृपया ये तो बताएं कि जब आप किसी को नया जन्म देते हैं तो किस आधार पे देते हैं, तो उनका उत्तर सुनिए, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्यत्कामतिशरा ग्रहित वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्। मैं कुछ नहीं करता, वो जैसे विचार लेकर आता है उसी विचार के आधार पर जन्म हो जाता है, उसमें मैं कुछ नहीं करता। तो आपकी जो वैचारिक संपदा क्या है? ऑस्कर जी वुड आल्सो लाइक टू ऐड वन। यस, बिल्कुल नहीं, जब आप लोग एक बात लिखित शास्त्र से आध्यात्मिक प्रक्रिया पर जाना चाहते हैं, इसमें वेदांता परंपरा में एक अच्छी तरीके से लिखा है, सबसे पहले श्रावण होना चाहिए। जब आप लोग सुनते नहीं, इसका मैसेज नहीं आता है ना, इसके बाद मनन होगा ना। तो सबसे पहले श्रावण, तो जो शास्त्र लिखित रूप में है वो आपके मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करेगा। तब एक बार प्रवेश किया है वहाँ रहेगा, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए मनन बिल्कुल ज़रूरी है। आपको पोंदर करना पड़ेगा, सोचना करना पड़ेगा, सुनो, बार बार सोचो, समझो। तीसरा निधिध्यास। आप बताइए ना, आप बताइए तीसरा क्या है, क्योंकि तरीका सुंदर रूप से लिखा हुआ है ना शास्त्रों में। सिर्फ तो अभ्यास की बात है। हाँ। और योगा सूत्र में भी कहा अभ्यास वैराग्यम, ये दोनों पहले श्रवण मनन और निधिध्यासन। निधिध्यासन उसका अभ्यास बराबर करते रहना। तो इसके लिए एक तो अपनी आंतरिक रुचि होनी चाहिए, तुम्हारी जिज्ञासा भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना कौतूहल और जिज्ञासा के ना तो आप उस तरफ जाएंगे। तीसरा, आपको तड़प होनी चाहिए वो पाने के लिए, वो तड़प बहुत आवश्यक है। और उसकी रुचिता और प्रियता जब आपको आ जाएगी तो वो निजता हो जाती है आपकी। तो रुचिता, प्रियता और निजता 3 स्टेप्स हैं, उनको आपको स्वयं में डेवलप करना पड़ेगा। और ये जो है, क्योंकि हम 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से और एक मन के सहयोग से हर पल हर शब्द से एक संस्कार बना लेते हैं। वहाँ तुम्हें विवेक को अपने सजग रखना है, प्रखर रखना है कि क्या हमारे लिए हितकारी है और कौन सा नहीं है, कौन सा प्रेय है, कौन सा श्रेय है। तो कठोपनिषद में अगर आप पढ़ते हैं तो प्रेय श्रेय की तो बहुत बड़ी विवेचना है। तो आपको प्रियता है वो जगत में लाएगी, श्रेय है जो वो परा और अपरा विद्या। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सत्र समापन की ओर एक खुशखबरी आपसे शाया करनी है। ऑस्कर पुजोल जी इस साल के वाणी फाउंडेशन डिस्टिंग्विश्ड ट्रांसलेटर अवार्ड से नवाजे जाने हैं। बहुत आपको शुभकामनाएं। 4 तारीख को आप सभी का स्वागत है, हमारे साथ जुड़िए। इस बार पहली बार होगा कि प्रशस्ति पत्र 2 अंतर्राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा और एक हमारी संस्कृत भाषा में पढ़ा जाएगा और मृदुल कीर्ति जी ही उसका वाचन करने वाली हैं। तो पधारिए और इस पूरे उत्सव का हमारे साथ साझा कीजिए। बहुत धन्यवाद।